প্রোডাক্টের মধ্যে 3টেই 100-100 রেজাল্ট পেয়েছে, ঠিক আমি 100% রেজাল্ট পেয়েছি যত প্রোডাক্ট ব্যবহার করছি। ফেস ওয়াশ ইউজ করছি চন্দনের, টুথপেস্ট ইউজ করছি। টুথপেস্ট গ্যাসের জন্য খুবই ভালো উপকার করে, মানে আমি যেটুকু উপকার পেয়েছি খুবই ভালো। আর ফেস ওয়াশটাও ইউজ করছি, সেটাও খুব খুব ভালো, আমার ফেসের আমার খুব মানে উপকার পেয়েছি। আরও তুলসী ড্রপও আমি ইউজ করছি, আরও বিভিন্ন প্রোডাক্ট আমি নিয়েছি, আমি ইউজ করব আরও। ধন্যবাদ। কারণ ম্যাম টুথপেস্ট নিয়ে আসলো দাঁতের জন্য, দাঁতের তো যা রেজাল্ট হয়েছে, দাঁতের রেজাল্টটা কেমন হলো? দাঁতের তো রেজাল্ট পেয়েছি, আবার আরো বিভিন্ন ধরনের মানে এতে মানে উপকার আছে। কেমন রেজাল্ট পেলেন আর কি হচ্ছিল আর কি কাউ বলছে? দাঁতের তো আমি মানে অন্য টুথপেস্ট ইউজ করে যতটা না আমার মানে মুখে যে গন্ধটা হয় আমি সেটা থেকেও মানে অনেকটা দূর দূর হয়েছে। তারপরে গরম জলের মধ্যে একটু টুথপেস্ট গুলে খেলে গ্যাসের সমস্যাও দূর হয়। তাহলে মোটামুটি মানে যখন গ্যাস আপনার অনুভব হবে আপনার গ্যাস হয়েছে, তখন আপনি হালকা উষ্ণ গরম জলে একটু টুথপেস্ট দিয়ে আপনি গুলে খাবেন, খেয়ে 10 মিনিট ওয়েট করবেন, দেখবেন আপনি তার রেজাল্ট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এই থিওরি যদি আপনি নিতে পারেন, আপনার পিছনে প্রচুর লোক থাকবে, এরকম হয়তো আপনি একাই মনে করবেন নাকি? তো আমি এতদিন অবসরভাবে বেতার কাজটা করছিলাম। জানুয়ারি মাস থেকে যা শুরু করবো, তো তার ড্রপটা এই মাসে দিতে হবে, ডিসেম্বর, তাই না? যদি কোনো কাজ আমি আগে ঘর করবো, ঘর করবো জানুয়ারি মাসে, তা সিমেন্ট কবে দিয়ে আসবে? সিমেন্ট বালি রড তো জানুয়ারি মাসে দিতে হবে, আগে নিয়ে আসতে হবে। সরি, তো এখানে আমরা নেক্সট 2025 সাল আমরা ভেটারাক্সের মাধ্যম দিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে একটা রাস্তা, সাকসেস যে রাস্তা, বেকারত্ব যে যন্ত্রণা, এটা আমরা ধরতে পারি যদি আমরা নিজেরা এই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে, এই সিস্টেম সম্পর্কে অকিবহল হই বা জানি সঠিকভাবে। তো আমাদের মধ্যে আমাদের বহুদিনের পুরনো লিডার মিস্টার প্রদীপ স্যার আসেন, ওনার কাছ থেকে উনি যদি হিন্দিতে বলবেন, আপনারা চেষ্টা করবেন একটু বোঝার। দেখবেন আমরা এখানে হিন্দি বই দেখি, আমরা বুঝতে পারি না, পারি না হিন্দি বই? হ্যালো, পারি না? অবশ্যই। কেন? সেখানে মনোযোগ নিবেশ করা হয় না, কি করা হয়? মনোনিবেশ করা হয় বলে আমরা সেটা বুঝতে পারি। এখানে যদি আপনি সেইভাবে ঠিক হিন্দি ফিল্মের মতন করে যদি আপনি এটা বোঝেন আর মনোনিবেশ করতে পারেন, এখানে আপনি ওনার কথা বুঝতে পারবেন। তারপরেও যদি আপনি না বুঝতে পারেন, আপনি আমাকে বলবেন ব্যক্তিগতভাবে, আমি আমরা সেই প্রবলেমে সলভ করার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? আমার কর্মসাথী তো সাবির স্যার কিছু বলতে বললেন। তো আজকে আস্তে আস্তে আমার যে যোদ্ধা আছে, সহযোদ্ধা যে দুজন এসছেন আমার সঙ্গে, আছেন তো অনেকেই, তো আস্তে আস্তে ওনাকে আমি বলছিলাম যে সাবির ভাইয়ের সাথে আমার সাবির স্যারের সাথে কেন আমরা আসছি, এটা আগে আপনারা আমাকে বলুন তো দেখি। কারণ অনেকেই তো মার্কেটে বলছে বা বলবে, আপনারা নিজেরা জানেন। আগে একটা কোম্পানি করতো, আমার একটা কোম্পানিতে গেছে, তো এটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না বা ঠিক করছে না, তো অনেক কথাই হয়তো বলছে, আগামী দিনে বলবে, আমরা এখন ফিল্ডে যাবো, বলবো তো স্যার? তো সার্ভিস স্যারের সঙ্গেই কেন আসবে, এটা একটা কোশ্চেন মার্ক থাকা উচিত, এটা আমার মনে হয়। তো ওনারা বলছেন যে কেন আসবো, এখন একটা এক্সাম্পলের মাধ্যম দিয়ে আমি বোঝাতে চাই। ধরুন দুটো গাড়ি আছে, তো দুটো গাড়ি দুটো ড্রাইভার আছে। এখন একটা ড্রাইভার অলরেডি 5 বার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে, তো আপনি এখান থেকে কলকাতায় যাবেন, আর একটা গাড়ি ড্রাইভার এখন একবারও অ্যাক্সিডেন্ট করেনি, তো কোন গাড়িতে উঠবেন? এখন একজন বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে যে ড্রাইভার, তার গাড়িতে উঠবো, আর একজন বলছে অ্যাক্সিডেন্ট করেনি, সেই গাড়িতে ওঠাবো। আমি বললাম না, অ্যাক্সিডেন্ট যে করেছে তার গাড়িতে উঠতে হবে, কারণ ওই অ্যাক্সিডেন্টের এক্সপিরিয়েন্স তার মধ্যে আছে, কারণ আগামী দিনে চলার পথে সে জানে ওই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট করতে গিয়ে আমাকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে কিন্তু মানে নেক্সট ওই জায়গাটা থেকে এড়িয়ে যেতে পারবে, তো ওই সমস্যাটা তার মধ্যে আসবে না। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা এরকম ঘটনা ঘটেছিল, আমি ওটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমার বাড়িতে একটা ছোটোখাটো মুদিখানার দোকান, বাড়ির লোক চায়, তো প্রোডাক্টগুলো আমাকে এনে দিতে হয়।
এখন হোলসেল দোকান থেকে যখন প্রোডাক্টটা নিয়ে বেরিয়েছি, আমি আজকে 22 বছর বাইক চালাচ্ছি, কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। ওই দিনকে আমার জীবনে প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট হলো, মানে বৃষ্টি পড়ছে, তো একটু তাড়াতাড়ি ওই দিনকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য, যে জোরে বৃষ্টি আসার আগে যাতে প্রোডাক্টগুলো ভিজে না যায়, তো যেতে গিয়ে আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছি রাস্তার ডান দিকে একদম জঙ্গলের মধ্যে 4টে কুকুর নিয়ে যাওয়ার মতো মারামারি করছে। তাই আমার তো অসুবিধা নেই, আমি আমার মতো যাচ্ছি, একটু জোরেই যাচ্ছিলাম, যে কুকুরের সোজাসুজি আসছে, সে কোথায় গেলে এটা আমার মোটরসাইকেলের সামনে, মানে একদম 1 হাতেরও ডিস্টেন্স নেই। আমি যত রকম ব্রেক কষলাম কিন্তু সম্ভব হয়নি, গাড়ি একদিকে, আমি আর একদিকে, শুধু হেলমেট ছিল বলে বেঁচে গেছে। এবার আশেপাশে যারা চেনে আমাকে এটা তুললো। আমি ওই দিন অনুভব করলাম ওই কুকুর দেখলে আমি মোটামুটি কুকুরের ওই জায়গাটায় সেই মতো চালাই বা নিজেকে কন্ট্রোলে রাখি। আর যে অ্যাক্সিডেন্ট করিনি এখনো, সে তার কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করার সম্ভাবনা বেশি, ঠিক আছে? তো সার্ভিস স্যার আজকে দীর্ঘ 10-11 বছর প্রোডাক্ট মার্কেটিং ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানির সাথে আছে। তো ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানির যে এক্সপিরিয়েন্স, যার কাছে 10-11 বছর আছে, আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে স্কুল মাস্টার চাকরি করে রিটার্ন করে গেছে, তার কাছে তার মানে 10% এক্সপিরিয়েন্স হবে না। ডাইরেক্ট সেলিং এর যে এক্সপিরিয়েন্স, ডাইরেক্ট সেলিং এ আর কিছু হোক না হোক, ডাইরেক্ট সেলিং এর এক্সপিরিয়েন্স তাকে আগামী দিনে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সুন্দরভাবে একটা বেঁচে থাকা দিশা নির্দেশ অন্তত এখান থেকে পায়। কে কতটা এখান থেকে ইনকাম করবো না করবো ওটা পরের কথা। যদি ডাইরেক্ট সেলিং এ এরকম মিটিং সিটিং আসা যায়, বিভিন্ন নতুন নতুন মানুষের সাথে কথা বলা যায়, বসা যায়, তো আর বিশেষ করে ডাইরেক্ট সেলিং আসা মানে কি, এই সংস্থার প্রোডাক্ট আমাদের তখন ব্যবহার করতে হবে, আর প্রোডাক্ট যখন ব্যবহার করতে হবে, ইনকাম হোক আর না হোক, নিজে এবং পরিবার কিন্তু সুস্থ থাকবে, এটা আমার মনে হয়। তো বিশেষ করে এই জন্য তো আমি নিজে ডাইরেক্ট সেলিং আছি, আর সার্ভিসের সঙ্গে থাকা এটাই আমার প্রধান কারণ। জীবনের মধ্যে একটা এক্সপিরিয়েন্স, যে 10 বছর 11 বছরের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আই থিঙ্ক আমার মনে হয় আগামী দিনে চলার পথে যে ভুলভ্রান্তিগুলো উনি করেছেন, কোনো না কোনো ভুলভ্রান্তি চলার পথে তোমার হয়েছে, ডেফিনেটলি হয়েছে, বা আমারও হয়েছে, আপনাদেরও হয়েছে। তো সেই ভুলভ্রান্তিগুলো থেকে উনি দূরে থাকবেন, এবং একটা দিশা নির্দেশ, উনি একটা গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে তো তার বসে থাকা প্যাসেঞ্জারদেরকে কিন্তু গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারবেন। এইভাবে তো ওনার সাথে আমি এসেছি, এটা হয়তো অনেকের মনে হবে, কিন্তু আমি বলবো এটা ঠিক। আর সব থেকে বড় কথা, এর আগেও আপনার যে সংস্থায় ছিলেন, আমিও কম বেশি লাস্ট 1 বছর আমার কমপ্লিট হয়নি, তো আপনারা বলতে সবাই না, মানে বিশেষ করে আপনারা, আমি যারা পরিচয় পেয়েছি, যারা ছিলেন, আমি এখন 1 বছর হয়নি, তো সেই 1 বছরের মধ্যে আমি যেটুকু বুঝলাম, এখানে ভালো মানুষ পাওয়াটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। বিজনেস তো খুব ভালো, কিন্তু ভালো মানুষ যদি আপনার সারথি যদি ভালো না হয়, ও আপনার লংজিভিটি হবেই না। 3 পা যাওয়া যাবে কিন্তু 100 পা যাওয়া যাবে না। তো সেই যে গাড়ির ড্রাইভার এবং সাথী সারথি সবই ভালো হওয়া দরকার। তো সেটা আমি সার্ভিস স্যারকে অনেক আগের থেকে চিনি মোটামুটি, ঠিক আছে? হয়তো কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে, ওগুলো আমি বুঝতে পারি যে এখানে সার্ভিস স্যারের দ্বারাই ইচ্ছাকৃত না, চলার পথে হয়েছে। আর চলতে গিয়ে একটা ভুল হবে, যে খেলবে, খেলা মানে তো সে ভুল করবে, যে খেলবে না, যে ঘরে ঘরে থাকে, তার ভুল আর ঠিক তার কাছে দুটোই সমান। তো বিশেষ করে এই লাস্ট 1 বছরে, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে আমাদের যিনি, মানে যার জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ ধরে, সেই প্রদীপ স্যার আমাদের মাঝখানে কিন্তু উপস্থিত হয়ে গেছেন। উনি এসছেন, তাদের প্রদীপ স্যারকে আমাদের সবার তরফ থেকে ওয়েলকাম জানাবো। হাততালি, তো হাততালিটা একটু জোরদার হওয়া দরকার, কারণ প্রদীপ স্যার কোম্পানি লেভেলে একটা বড় ফিগার, আমি যেটুকু অ্যানালিসিস করেছি। तो স্যারের জন্য এইটুকু হাততালি আমার মনে হয় না। एक्चुअली सर जो कंपनी में जितना बार लेवल पे है, इसके लिए हातताली तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের গুরুদেব সার্ভিস স্যারের কাছে। তো সার্ভিস স্যারকে বলবো প্রোগ্রামটাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য, যেহেতু
আমাদের স্যার এসে গেছেন, যার কথা আজকে আমরা এখানে শুনবো। আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে তো একে অপরকে প্রত্যেকেই দেখতে পাবো, হয়তো 2-4 दिन বা 15 दिन অন্তর অন্তর স্যারকে তো সবসময় পাবো না। सर को हमारा बिजनेस इतना इजी से नहीं मिलेगा सर को, तो इसलिए सर का ही बात हम लोग सुनेंगे आज। तो थैंक यू। বলেন, আমি এই ছোট ছোট কথাগুলোকেই মানুষকে বলি, যার যেটা যেখানে ভালো লাগে। উনি বলেন যে নেটওয়ার্ক এমন একটা ব্যবসা, আপনি কাউকে মাইনে দেন না। আমি কথাটা আরো একবার বলছি, মাথায় গেঁথে নেন। নেটওয়ার্ক এমন একটা ব্যবসা, হাজার হাজার মানুষকে আপনার মাইনে দেওয়া লাগে না, অথচ অজান্তে অলক্ষ্যে আপনারই হয়ে তারা কাজ করে। এ কত বড় একটা সিস্টেম, অথচ আমরা এটাকে মনে করি তেল মাখানো বা ওই ঘরে খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটা ব্যবসা। অ্যাকচুয়ালি মোটেই তা নয়। আপনাদের যাদের ভালো কথা বলার শক্তি আছে বা এই যোগ্যতাটা আছে, যাদের কম বেশি পরিচিতি আছে, আমার মনে হয় এই পরিচিতিটাকে একমাত্র এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই ইনকামের রাস্তাটা বড় করা যায়। সাবির স্যারের একটা কথা বলি, দারুণ কথা, মিলিয়ে নেবেন। ভালো কথা বারবার বলতে হয়, ভালো কথা শুনতেও হয়। ওনার কথাটা সেদিনে শুনলাম, বলছে যারা নেটওয়ার্ক করেছে দেখবেন তারা কোনোদিন নার্ভের পেশেন্ট হবেন না। তা আমার সামনে যিনি বসে আছেন, উনি এই নার্ভের সমস্যায় 2-3বার মনে হয় ভেলোর গেছেন, আর 14 থেকে 15 লাখ টাকা অলরেডি ঘরের গোছানো টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। তাহলে আমি যদি সাবির বাবুর সঙ্গে থাকি, তাহলে দ্বিতীয় আর কোন মাস্টারমশাই আর ভেলোরে যাবেন না বা এরকম গোছানো টাকা তার ব্যয় হবে না। এরকম বহু উপকার আমরা এইসব জায়গাগুলোতে পেয়ে যাবো। আর আয়ুর্বেদ প্রোডাক্টের কথা বলছেন, আমি আইএমসিতে আমি মনে হয় 2 থেকে 3টে প্রোডাক্টের বেশি আমি কোনোদিন ব্যবহার করিনি। আমি 2018 সালে আইএমসিতে আসি। আমাদের পটু বাবু বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, উনি বলছেন যে তুলসীর চেয়েও ভালো প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যারোডাইজেস্ট। তা আমি শুধু অ্যারোডাইজেস্টটাই ব্যবহার করতাম। তা আমার আজও কোনো রোগ নেই, সেদিনও ছিল না, আজও নেই, গ্যাস নেই, সুগার নেই, অম্বল নেই, অথচ আমার বয়সেই 54। কেউ বুঝতেই পারে না। যাদের আমি পড়িয়েছি তাদের ছেলে মেয়েরা এখনো পড়ে, যাদের হিসাব মতো আমি কাকা হই দেখি রাস্তাঘাটে তারা এখনো দাদা বলে ডাক দেয়। তাই যাই হোক, এই বলি যে মোটামুটি আয়ুর্বেদ এর কোনো সাইড ইফেক্ট নেই। আর কত বলবো, 4-500 হয়তো প্রোডাক্ট আছে, আমাদের এখনো অনেক জানতে হবে। আর যদি ব্যবসা করতে হয়, আপনার 4-500 লাগবে না, 8-10টা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করুন, তাতেই দেখবেন আপনার যথেষ্ট ইনকাম হবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। প্রোডাক্টের পাশাপাশি আপনার লাগবে পে আউট। যদি পে আউট ঠিকঠাক হয় তবু ঠিক আছে, চলুন প্রোডাক্ট ভালো, পে আউট ভালো। তারপর হচ্ছে প্রোফাইল। তো প্রোডাক্ট যদি ভালো থাকে, পে আউট যদি ভালো থাকে, প্রোফাইল যদি কোথাও গন্ডগোল থাকে, তাহলে কিন্তু নেটওয়ার্কে সাকসেস আসে না বা আসবে না। তাহলে প্রোডাক্ট ভালো হতে হবে, পে আউট ভালো হতে হবে, প্রোফাইল ভালো হতে হবে। বলছে তাতে কি হবে? বলছে না। বলছে তাহলে কি করতে হবে? বলছে প্ল্যান। তাহলে কি লাগবে? প্রোডাক্ট ভালো লাগবে, প্রোফাইল ভালো লাগবে, পে আউট ভালো লাগবে, প্ল্যানও ভালো লাগবে। আর এর ভিতরে যদি কোথাও একটা কিছু কমি হয়, জানবেন সেই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি বেশি থাকতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনার প্ল্যান ভালো, প্রোডাক্ট ভালো, পে আউট ভালো, প্ল্যান ভালো, প্রোডাক্ট ভালো, পে আউট ভালো, তাহলে কোনটা খারাপ হলো? প্ল্যান, প্রোফাইল। তো প্ল্যান ভালো, জবরদস্ত প্ল্যান, বাট প্রোফাইল খারাপ আছে, যে কোনো দিন ইন্ডাস্ট্রি ধরে যেতে পারে, তার প্রোফাইলে চলে, তার প্রোফাইল নরম থাকা চলবে। এবার ধরুন প্রোফাইলটা ভালো, প্ল্যানটা ভালো, পে আউট ভালো, প্রোডাক্টটা খারাপ, প্রোডাক্টটা স্ট্রং নেই, তাহলে কি হবে? সেই ইন্ডাস্ট্রি বেশি টিকবে না। তাহলে মিনিমাম 4টে পি যদি আপনার জায়গা থেকে স্ট্রং মনে হয়, আপনার জায়গা থেকে, কোম্পানির জায়গা থেকে বলছে আমি সর্বোত্তম, এভরিথিং স্ট্রং, প্ল্যান আমার স্ট্রং, প্রোফাইল আমার স্ট্রং, প্রোডাক্ট আমার স্ট্রং, সব স্ট্রং, তবুও আপনার জায়গা থেকে আপনি সোচুন, ভাবুন যে আপনার থেকে ভাবুন যে 4টে পি আপনার কাছে কমফোর্টেবল কিনা। যদি 4টে পি কে আপনি যদি কমফোর্টেবল মনে করেন, প্ল্যান, প্রোফাইল, প্রোডাক্ট, পে আউট, যদি আপনার কাছে কমফোর্টেবল মনে হয়, তাহলে আপনি ওইখানে সমস্ত কিছু উজাড় করে দিন, আপনি সাকসেস সাকসেস সাকসেস, এটা দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই আপনার কাজ করবে। কিন্তু এর ভিতরে যদি কোথাও গন্ডগোল থাকে, কোথায় গন্ডগোল ছিল আমাদের আগের প্ল্যাটফর্মটা, যেটা বারবার আগেরটা কেন উচ্চারণ করছি, এখানে বেসিক কিছু লোক কেন বসে আছেন যারা আগে ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছেন, যেমন মাস্টার স্যার বললেন। তো বিষয়টা হলো যে ওখানে একটা জিনিসের গন্ডগোল ছিল, সেটা হচ্ছে প্ল্যান, যার জন্যই কিন্তু আমরা প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করতে বাধ্য হয়েছি। শুধু আমি নয়, আপনি নয়, এরকম হাজারো হাজারো সংখ্যক আগামী দিন বেদালেস আসতে চলেছে। তার কারণ বেদালেসের 4টে স্ট্রিং স্ট্রং আমার মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে প্রোফাইল,
তো জবরদস্ত প্রোফাইল আছে, জবরদস্ত প্ল্যান, যে প্ল্যানে স্যার আজকে হয়তো কিছু বলবেন, জবরদস্ত প্রোডাক্টে যদি কোনো ডাউট থাকে এখনই বলুন। যে কোনো প্রোডাক্ট আমি ইউজ করিয়েছি, ইউজ করছি বা ইউজ আগামী করাবো, যেটুকু নলেজ আছে আপনাদের কাছে শেয়ার করে দেবো যদি আপনার কিছু মনে হয় তো। আর পে আউটের কথা বলছেন, কোনো কথা হবে না। আজকে রজা বাবু আমাদের এখানে এসেছেন সপ্তাহে, তার যে সমস্ত পে আউটগুলো হয়েছে আমি তাকে নক করেছি যে স্যার 10 তারিখ কোনো পে আউট হয়েছে, বলছে কি বলেন স্যার 4 তারিখের উপরে আমাদের কোনো পে আউট নেই, 1 থেকে 5-6 তারিখের মধ্যে মিনিমাম আমাদের পে আউটটা ঢুকে যায়। তো সবকিছু স্ট্রং আছে। আজকে সেই সমস্ত স্যারদের সঙ্গে আলোচনা হবে, স্যার নিশ্চয়ই বলবেন। একটা নতুন ভাবে আমাদেরকে সাজিয়েছে নিউ প্ল্যাটফর্ম, যেমন যুগের পরিবর্তন হয় তেমনি ভাবে আমাদের প্ল্যানেরও কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা আমি খুব এক্সাইটমেন্ট, কারণ এই প্ল্যানটাকে আমার খুব সুন্দর করে নিতে হবে। নিয়েছি এর আগে কিছু জানকারি আছে, কারণ আমি এখন টিমের প্রতি বেশি ধ্যান দিচ্ছি, টিমের ভিতটাকে তৈরি করছি, টিমের মজবুত জায়গাটাকে তৈরি করছি। বেশি সংখ্যক হয়তো আমার ম্যান পাওয়ার নেই, বাট যেটুকু আছে সেটুকু থেকেই অনেকটা কিছু এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। আগামী জানুয়ারি আমার জন্য অনেক কিছু বেটার কিছু ওয়েট করে আছে, সেটা আমি নিজেও ফিল করছি, আমার টিম ফিল করছে, এবং সেই টিম যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করছে, এতটাই পরিশ্রম করছে সেটা আর কি করে বলবো, সেটা পরে যদি আপনাদের সঙ্গে কোনো সময় পার্সোনালি মিট হয় তাহলে বলে দেবো যে আমরা কোন প্ল্যানে কি পরিশ্রমের দ্বারা আমাদের ফিট আমরা মজবুত করছি। আগামী দিন ভেদালে সেখানে হিলবে না, কাঁপে হয়তো, বারাসাত টপে যাবে, এটাও নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার কারণ দিস ইজ মাই টার্গেট অ্যান্ড বারাসাত। তো এই ক্যালকাটাতে আরো কিছু জোন আছে, ক্যালকাটাতে আরো কিছু জায়গা আছে। আমি বারাসাতটাকে কেন হিট করছি, আমাদের সাবির বাবু আছেন দুর্যন্ত জবরদস্ত লিডার, আমাদের কনক স্যারকে পেয়েছি আরো জবরদস্ত লিডার। তো এরকম ভাবে আমরা যে মুষ্টি সংখ্যক যে মানুষগুলো আগামী দিনের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, একত্রিত বলা যেতে পারে এটা হিট করবে। অনেক সময় শোনা যায় বিহার, ছত্তিশগড়, XYZ, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যে সমস্ত রাজ্যগুলো আছে সেখানে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, তাদেরকেও সম্মান জানাই, তারা সুন্দর করে কাজ করছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোথাও কোনো কম্পিটিশন নেই। একটাই কম্পিটিশন, বেঙ্গল বা ক্যালকাটা, অরিদিন বারাসাত। এইটাকে যদি আমরা হিট করতে পারি তাহলে আমরা যেমন কিছু জেনারেশন আলোচনা করেছি। তো সরি স্যার, আজকে স্যারের সামনে তো গলা কেঁপে যায়, কিছু বলাই যায় না। सर इट इज ग्रेट सर, देखने से भी अच्छा, काम से भी अच्छा, प्रोडक्ट बोलने से भी अच्छा, प्लान भी अच्छा। थैंक यू सर, सुपर हो जाए। बात करेंगे वेजलेक्स कंपनी के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, नए लोग आए हैं। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, हरियाणा का रहने वाला हूँ और इस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। आयुर्वेद का प्रचार घर घर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और पिछले 13 साल में बहुत कुछ सीखा है, अचीव किया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे रिलेशन बने हैं पूरे इंडिया लेवल पे, और काम के साथ साथ वो कुछ अचीव हुआ है जो कहीं नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद को पसंद करते हैं? कितने लोग ऐसे जो आयुर्वेद को पसंद करते हैं? बहुत बढ़िया। क्यों पसंद करते हैं हम आयुर्वेद को, क्या कारण है? कोई बता सकता है? भरोसा किया जा सकता है सर। भरोसा किया जा सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। साइड इफेक्ट नहीं है, और केमिकल्स नहीं है। ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता ना, आयुर्वेद के नाम पे लोग केमिकल भी दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ आयुर्वेद हमें, बस आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि हमें इसको पसंद करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए? ये जड़ से उजाड़ देता है हमारे अंदर जड़ी की जो भी बूटियां से प्रॉब्लम है। तैयार किया जाता है सर, जिसमें सर लॉन्जिविटी होता है, लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ। और कोई? जो आदमी को स्वस्थ रखता है हर टाइम। चलो मैं बताता हूँ। हमारे डॉक्टर संदीप यादव जी के बारे में सब लोग जानते हैं, यस सर। तो उनको काफी अच्छी नॉलेज है आयुर्वेद के बारे में। एक्चुअल में आयुर्वेद ना सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक दवाई नहीं है। आयुर्वेद जीवन जीने की शैली है, एक तरीका है जीवन को सही तरीके से जीने का। और आज का नहीं आयुर्वेद, अगर हम एलोपैथ की बात करें, अंग्रेजी मेडिसिन की बात करें, तो कब से स्टार्ट हुई है हमारे इंडिया में? कोई बता सकता है? इंग्लिश मेडिसिन जो हम यूज करते हैं वो कब से इंडिया में आई है, भारत में कब से आई है? सर 1947 के बाद। नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री हुआ था अंग्रेजों का भारत में, उसके बाद मुझे लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों का चलन हुआ है। उससे पहले तो हमारे पुराने वैद्य
हकीम होते थे जो इलाज करते थे, है ना, आयुर्वेद के माध्यम से। तो आयुर्वेद को पसंद करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा जो आयुर्वेद है ये हजारों साल पुराना है और ये परमात्मा का दिया हुआ है। जैसे मनुष्य ने जन्म लिया उसके साथ ही ये सब चीजें आ गई थी हमें स्वस्थ करने के लिए। किसी ने, हमने नहीं बनाया इस आयुर्वेद को, परमात्मा ने बनाया है, ठीक है। इसलिए आज हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। आज का हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो चीजें हम यूज करते हैं रेगुलर घर में खाने पीने की, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, तो न चाहते हुए हम बीमारियों से बच नहीं पा रहे हैं। इतनी बीमारियां हो चुकी है, जैसे हम हर बार पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां जो आज के समय लोगों को परेशान करती हैं। उसमें डायबिटीज है, आपका बीपी है, थायराइड है, गठिया है, नजला है, कितनी सारी बीमारियां हैं और हम रेगुलर मेडिसिन यूज करते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहे। एग्जांपल के डायबिटीज की बात करते हैं, हर बार डॉक्टर संदीप जी डायबिटीज का नाम लेते हैं कि डायबिटीज क्या है, क्यों होती है, और क्या हम जब डायबिटीज होने के बाद मेडिसिन स्टार्ट करते हैं क्या वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे सवाल है। किसी को शुगर का बीमारी हुआ, जैसे उसने टेस्ट कराया उसको बीमारी हुआ, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दवाई शुरू करेगा, गोली टैबलेट शुरू करेगा, और जब से वो टैबलेट लेनी शुरू करता है चलते चलते धीरे धीरे वो बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है ना, या ठीक हो जाती है? बढ़ती जाती है, ठीक तो नहीं होती नहीं। आज आपका mg है वो 25 mg है, 50 mg, फिर 100 mg, फिर एक टाइम का टैबलेट, फिर 2 टाइम का टैबलेट, फिर एक टाइम के बाद इंसुलिन लेना पड़ता है ना। जबकि हम वो दवाई खा रहे हैं वो किस लिए खा रहे हैं? ठीक होने के लिए खा रहे हैं। हम मेडिसिन क्यों खाते हैं? ताकि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन वो लेने के बाद भी हमारी जो बीमारी है वो ठीक होने के बजाय बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो इलाज कर ही नहीं रही है, मतलब दबाता है, वो इलाज नहीं कर रही है, रोग को दबा देता है, वो उसको दबाता है। दबाने का मतलब जैसे अच्छा, डॉक्टर संदीप जी की ट्रेनिंग कितने लोगों ने अटेंड किया था? प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अच्छा कुछ ही लोगों ने अटेंड किया था। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में और एलोपैथ में डिफरेंस क्या है। आज दोबारा से फिर क्यों एक ट्रेंड आया है आयुर्वेद में, क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं? उसका रीजन यही है, पिछले 25 से 30 साल में आप लोगों ने ये फील किया होगा, महसूस किया होगा कि हमारे समाज में हर घर में इतनी बीमारियां हो चुकी हैं जिनका अंग्रेजी दवाइयों से इलाज पॉसिबल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि जितने भी इंग्लिश मेडिसिन है, अंग्रेजी दवाइयां हैं, वो सिम्टम्स पे काम करती हैं, लक्षणों पे काम करती हैं, सिम्टम्स पे काम करती है। बात समझ में आ रही है? कोई भी देखो, 3 चीजें हैं। सबसे पहले है कारण जिसकी वजह से बीमारी लगी और बीमारी के सिम्टम्स आए। वजह, रीजन, डिजीज और सिम्टम्स। हम जो इंग्लिश लक्षण पे काम कर रही है, जैसे मान लो आपको बुखार हुआ, तो बुखार में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, हम पैरासिटामोल लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे डायबिटीज में शुगर बढ़ता है, हम टैबलेट लेते हैं, शुगर लो हो जाता है। क्या वो टैबलेट खाने से परमानेंट उसका सॉल्यूशन हुआ? नहीं हो रहा। अगर उसको जड़ से खत्म करना है तो हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वो जड़ पे काम करता है, वो कारण के ऊपर काम करता है कि क्यों बार बार बुखार हो रहा है, उसकी वजह क्या है। डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है। काफी लोगों ने सुनी होगी डायबिटीज क्यों बढ़ती है। यहाँ पे डॉक्टर्स कितने जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट है, हेल्थ कंसल्टेंट है सब लोग, है ना, हेल्थ कंसल्टेंट। अच्छा, प्रीवियस कंपनी में कितने लोगों ने काम किया है? प्रीवियस कंपनी में जो आप लोग नाम ले रहे थे, सर भी नाम ले रहे थे बार बार, ऐसे लोग कितने जो बिल्कुल फ्रेश है, जिन्होंने कभी किसी कंपनी में काम ही नहीं किया। अच्छा, आप सब लोग बिल्कुल नहीं है। ये बोल का टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ सर, कुछ दे देंगे, टाइम बढ़ा सकते हैं बोल का थोड़ा सा? 5 बजे 5 बजे तक मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा वो एक प्रोडक्ट का पीपीटी है, हल्का सा आपको दिखाना चाहूंगा, तभी आपको ये आइडिया लगेगा कि हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं
वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है, और वो आयुर्वेद को क्यों प्रमोट कर रहा है, ऐसा क्या डिफरेंस है हमारे आयुर्वेद में और एलोपैथ में, जिससे हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि आप हमारी दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, परमानेंट होना चाहिए ना पता आपको। क्योंकि आप किसी को बोलेंगे कि आपको डायबिटीज कितने साल से है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो 10 साल से डायबिटीज है। अब वो 10 साल से दवाई खा रहा है, उसकी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, आप बोलोगे मैं 3 से 6 महीने में आपकी डायबिटीज खत्म कर दूंगा झट से, वो क्या मानेगा? नहीं मानेगा ना। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है तो मना भी नहीं पाएंगे। आप उसको क्या दलील देंगे या आप उसको क्या ऐसा समझाएंगे कि वो आपकी बात समझ जाए, मान जाए? क्यों मानेगा वो आपकी बात? जब आपको उसका रीजन पता होगा कि क्यों हमारा आयुर्वेद उसको ठीक करेगा। तो उसकी छोटी सी एक पीपीटी है, जस्ट आपको एक ही बीमारी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं तो आपको ये, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हम जिस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं वो सभी बीमारियों में कैसे काम करेगा। एक डिजीज का, एक बीमारी का एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी बीमारियों में वही सेम चीज रिपीट होने वाली है। ये क्या लिखा है, पढ़ेंगे। Every human being is the author of his own health or disease. हर कोई अपने हेल्थ का और बीमारियों का खुद कारण होता है। कारण क्या है? अब देखो यहाँ पे लिखा है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, पढ़ो। हार्ट डिजीज है, कैंसर है, एलर्जी है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थायराइड है ना, ये सब बीमारियां आमतौर पे होती हैं, है ना। पुराने समय में ये बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती थी। रीजन क्या था? हमारा जो खान पान था, रहन सहन था, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता था। जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारी फैसिलिटीज बढ़ी हैं, या खाने पीने की जो फास्ट फूड ये सब चीजें, तब से दिक्कत बढ़ी है। खास तौर पे किसान लोग जो फसल उगाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं ना, यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह, हाँ। अब जितनी भी बीमारियां हमें लगती हैं वो कहीं ना कहीं हम खान पान से लगती हैं, और हमारे शरीर में जो भी जहर इकट्ठा होता है, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, उसकी वजह से बीमारियां लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारे अंदर का जो कोलोन है, कोलोन का मतलब जो हमारा अंदर का जो आंत होता है जिससे खाना ट्रेवल करता है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में वो कहाँ जाता है? पेट में। पेट के बाद में वो ट्रेवल करता है हमारी जो इंटेस्टाइन बोलते हैं ना उसको, आंत बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पूरा खाना ट्रेवल करता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है ना। अब जब हम खाना खाते हैं तो ब्रश करके अपना मुंह साफ कर लेते हैं, सुबह जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो भी हम साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ से लेके, मुंह से लेके और जो मल द्वार तक का जो भी ट्रेवलिंग का जो रास्ता है, कभी उसको हम साफ नहीं करते हैं कि कभी किया साफ? नहीं। तो जब खाना हम खाते हैं मुंह में, आप ब्रश नहीं करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने एक हफ्ता ब्रश नहीं किया तो क्या होगा? दुर्गंध आएगा, बदबू आएगा। अगर हमने 1 महीना ब्रश नहीं किया तो क्या होगा? सड़ जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा। जबकि हम कोई बुरी चीज तो नहीं खा रहे हैं, खाना ही तो खा रहे हैं, लेकिन उसको भी साफ करना पड़ता है। सुबह फ्रेश होने के बाद भी हम साफ करते हैं, धोते सब लोग। तो जब बीच का जो रास्ता है लगभग 28 फीट का, आप लोगों ने सुना होगा, ये जो रास्ता वो 28 फीट का है, इसको हम कभी साफ नहीं करते। और उसमें जो गंदगी चिपकती है या जो भी टॉक्सिन्स अंदर जहर जो हमारे रहता है, वही हमारी बीमारियों का कारण बनता है। अगर आप उसको नियमित तरीके से आप उसको भी साफ करते रहेंगे तो आपकी 85% बीमारियां वैसे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने बताया है? आयुर्वेद ने बताया। और पुराने समय में हम जो जड़ी बूटियां खाते थे, आंवला, आपका त्रिफला, ये सब चीज किस लिए होती थी? सफाई करने के लिए होती थी। आज कोई इसको पूछता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं इसके बारे में, है ना। तो मैं बात कर रहा था बीमारी की, डायबिटीज का है इसमें। एक डिजीज का एग्जांपल लेंगे हम, उसके बाद में हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई है जिसको डायबिटीज है? जिसको हुआ हो कभी डायबिटीज? आपको है? किसी को थायराइड हुआ हो या अभी हो?
थायराइड किसी को? अच्छा, तो डायबिटीज की बात करते हैं। रियल में डायबिटीज क्या होता है? शुगर क्या होती है? बीमारी? कितने लोग मानते डायबिटीज बीमारी है? कितने लोग मानते डायबिटीज एक बीमारी है, शुगर एक बीमारी है? हाथ खड़ा करेंगे, रिस्पॉन्स दीजिए, ऐसे तो फिर बात करके मजा नहीं आएगा। शुगर तो सर बीमारी सर नहीं है सर। आप तो इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है। सर लेवल बढ़ जाता है सर। अच्छा, लेवल बढ़ता है। डायबिटीज बीमारी नहीं है? कोई भी बीमारी नहीं बीमारी है। नहीं चलो, कितने लोग मानते हैं बीमारी? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग मानते हैं बीमारी है? कितने लोग मानते बीमारी नहीं है? वो हाथ खड़ा करेंगे। तो जो हाथ दोनों साइड में खड़ा नहीं कर रहे हैं उनका क्या मत है? वो बीच का रास्ता है। अंतराली का है। भैया तो बीमारी है या तो नहीं है, एक साइड में तो हाना तो करना पड़ेगा ना। लोटा है। सर बीमारी नहीं है नहीं है? नहीं है आपको क्या लगता है, डायबिटीज बीमारी है या नहीं है? बीमारी नहीं है। मैंने पूछा मुझे बोलो। मानने है या नहीं है? बोलने ही अरेस्ट हो जावे सर। हाँ जी? नहीं है। नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो, रियल में डायबिटीज बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर शुगर नहीं होगा, अगर हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। हम जब खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज। वो क्या है? शुगर है, उससे क्या है? एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। लेकिन उस शुगर लेवल का हमारे ब्लड में बढ़ना, वो बीमारी है। लेवल का बढ़ना बीमारी है। वो क्यों बढ़ता है? जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में हमारे यहाँ पे एक अंग है, एक पार्ट्स है, बॉडी पार्ट है, जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और वो जो इंसुलिन है वो खाने के साथ डाइल्यूट होकर हमारे ब्लड में जाके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बात समझ में आ रही? तो शुगर मेंटेन करने का काम किसका है? इंसुलिन का है। किसी वजह से मान लीजिए आपका जो पैनक्रियास है, जो आपका पार्ट है, वो पत्ते के आकार का एक यहाँ पे अंग होता है, वो किसी वजह से काम कम करता है या नहीं करता है, तो वो इंसुलिन बनना कम हो जाता है। अब इंसुलिन कम बनेगा तो आपके शुगर में जो आपके जो ब्लड में जो शुगर का लेवल उसको मेंटेन करने का काम भी सही से नहीं होगा, तो आपका लेवल बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट करेगा, आपको शुगर लेवल बढ़ा दिखेगा, वो बोलेगा आपको तो शुगर की बीमारी हो गई। उसके बाद क्या करेगा? आपको टैबलेट दवाई शुरू कर देगा। आपको सुबह से आप बोलेंगे दवाई खाओ, आप ठीक रहोगे। आप जैसे दवाई शुरू करोगे, आप लेवल चेक करोगे दवाई लेने के बाद में आपका लेवल नॉर्मल, तो मतलब बीमारी ठीक। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या रहेगी कि आपको ये दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी। होता है ऐसा? होता है ना, लाइफ टाइम आपको खाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा। अच्छा, आप इस उम्मीद के साथ दवाई ले लेते हैं कि चलो मैं ठीक रहूंगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो जो टैबलेट है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, 1 से 2, फिर एमजी बढ़ेगा, फिर आप इंजेक्शन पे आएंगे। ये प्रोसेस चलता है। अब मुझे ये बताइए, वो जो दवाई आप खा रहे हो अगर वो लाइफ टाइम भी खाएंगे तो क्या आपकी शुगर ठीक हो जाएगी? नहीं। अगर 1% भी उस दवाई से आपकी शुगर ठीक हो रही होती, 1% भी, जैसे मान लीजिए आज आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, आपको 1 साल हो गया, अगर 1% भी उससे असर हो रहा होता बीमारी में, तो आपकी डोज कम होनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी? कम होनी चाहिए। कम होना चाहिए ना दवाई, क्योंकि आप लंबे समय से ले रहे हो तो आपकी बीमारी क्योर हो रही है, ठीक हो रही है, तो धीरे धीरे दवाई का डोज घटना चाहिए, लेकिन दवाई का डोज बढ़ रहा है, इसका मतलब बीमारी क्यों? क्योंकि वो जो हम दवाई खा रहे हैं वो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए है ही नहीं। वो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। अगर उसको ठीक करने के लिए होती तो कुछ तो आराम मिलता ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ तक का मैंने जो डायबिटीज का प्रोसेस बताया वो सबको समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं लोगों को सब समझ में आया डायबिटीज क्या होता है? अब गड़बड़ क्या हो रही है? अच्छा मुझे बताओ, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? आप बताइए सर, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है परमानेंट? हाँ सर, ठीक हो सकता हाँ। मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है? मैं जिधर इशारा करूंगा वही बताएंगे। सर हो सकती थी, क्या लगता है? कम नहीं कम नहीं होता ना।
मतलब टैबलेट छोड़ देंगे तो फिर लेवल बढ़ेगा, मतलब ठीक नहीं होगी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है सर। तो जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक तो नॉर्मल है, जब नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा ही है ना। ठीक है, बैठिए। देखो डायबिटीज अगर हम जो एक कल्चर चला आ रहा है हमारे सिस्टम में उसके हिसाब से तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया है एलोपैथ में कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। लेकिन अगर उसका सही से इलाज किया जाए, उसको ठीक करने का तरीका सही हो, तो वो परमानेंट ठीक हो सकती है, जो आयुर्वेद बताता है, जो आयुर्वेद बताएगा। कैसे बताएगा? चलो हम जो प्रोसेस कह रहा है उसको रिपीट करते हैं। हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज में एक हार्मोन का मिश्रण हुआ जो किसने बनाया? पैनक्रियाज ने बनाया। और उस हार्मोन का क्या काम था? इंसुलिन का क्या काम था? लेवल को मेंटेन करना। अब हमारे पैनक्रियाज ने काम करना कम किया या बंद कर दिया किसी वजह से, तो इंसुलिन बनना कम हो गया या बंद हो गया। अब वो बंद हुआ तो हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ गया। बात समझ में? अब बढ़ने के बाद हमने मेडिसिन कौन सी ली? लेवल को कम करने के लिए। कौन सी मेडिसिन ली? शुगर लेवल को कम करने के लिए। लेकिन शुगर किस वजह से बढ़ा? कारण क्या था शुगर बढ़ने का? रीजन क्या था सर? आप बताइए, शुगर लेवल क्यों बढ़ा? नहीं समझ में आया? इंसुलिन कम बनना, खाना खाया, पेट में गया, उसका ग्लूकोज बना और उसके अंदर एक हार्मोन मिला जिसका नाम इंसुलिन है, जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उस हार्मोन को बनाता कौन है? पैनक्रियाज बनाती है। ठीक है, पैनक्रियाज बनाती है। अब पैनक्रियाज किसी वजह से काम कम करके उसने इंसुलिन नहीं बनाया तो शुगर का लेवल बढ़ गया। अब जैसे लेवल बढ़ा, हमने क्या खाई? टैबलेट खाई, लेवल नीचे आ गया। ठीक है, और नहीं खाई तो फिर बढ़ गया। तो अब हमने जो टैबलेट खाई है वो किसका इलाज कर रही है? लेवल को कम कर रही है ना। उसका बढ़ने का कारण क्या है? शुगर बढ़ने का परमानेंट रीजन क्या है? वो जो पेन क्लियर है ना, वो काम नहीं कर रहा। हाँ, बात समझ में आ रही है? हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंसुलिन जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। और इंसुलिन बनाने का काम हमारे पैनक्रियाज का है, नेचुरल तरीके से देखा जाए तो। अगर वो प्रॉपर काम करे और प्रॉपर इंसुलिन बने तो कभी आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं, वो लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन हम जो दवाई खा रहे हैं वो क्या कर रही है? वो लेवल को नीचे कर रही है, पैनक्रियाज को ठीक नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? हम जो टैबलेट खा रहे हैं वो क्या करती है? वो लेवल को नीचे करती है। समझ में आई? अगर शुगर को परमानेंट ठीक करना है तो हमें कौन सी दवाई खानी चाहिए? जो आपकी पैनक्रियाज को रिपेयर करे, उसका इलाज करे, उसको ठीक करे और उसको बोले कि आप पैनक्रियाज जो तुम है तू इंसुलिन बना। नेचुरल काम तो उसका ही है ना बनाने का। बात समझ में आ रही है? Yes. तो हमारा जो आयुर्वेद है वो शुगर लेवल को नीचे करने का काम नहीं करता है, वो जड़ पे काम करता है, कारण पे काम करता है। कारण क्या था कि हमारी जो पैनक्रियाज थी उसने काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो उसको रिपेयर करने का काम करती है। एकदम सर। बात समझ में है? Yes. समझ में है सर? तो अगर हमारी पैनक्रियाज ओके हो जाती है तो क्या शुगर लेवल ओके हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। क्योंकि जो काम हम दवाई टैबलेट से कर रहे थे वो काम किसका था? पैनक्रियाज का। तो हम उसको ठीक कर देंगे, दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। और वो अंग्रेजी दवाई से हो ही नहीं सकता। आज तक कोई मेडिसिन ऐसी बनी ही नहीं है जो आपके पैनक्रियाज को ठीक करे, अंग्रेजी दवाई बनी नहीं है। आप डॉक्टर से जाकर पूछ लेना, आयुर्वेद ही है जो उसको रिपेयर कर सकता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारी है, जो भी हम जड़ी बूटियां हमारी कंपनी यूज करती है, वो कंपनी की अपनी बनाई हुई नहीं है, वो हजारों सालों से चली आ रही है। हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो सब लोग यूज करते थे, जो वैद्य थे वो, और बीमारियां ठीक भी होती थी। बस कंपनी ने क्या किया है, वो सब जो ज्ञान जो बुक्स में लिखा है, जैसे चरक संहिता है, वागभट संहिता है, ऐसे जो हमारे पुराने ऋषि हुए थे, जो ये आयुर्वेद को जनक थे, जो आयुर्वेद के बारे में लिखते थे, वही से सब नॉलेज कलेक्ट किया कंपनी ने और वही से प्रोडक्ट बनाए हैं। तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करूंगा। भी आंवला खाएंगे तो फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन खाना तो पड़ेगा। अभी हम वो बात कर रहे थे कि हमारे अंदर से सफाई नहीं हो रही है। अब सफाई करने के लिए हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हम वो कर ही नहीं रहे। आंवला है, त्रिफला सब लोग जानते हैं, आंवला, हड़बहेड़ा, उसके बाद
एलोवेरा है, उसके बाद में आपका जीरा है, सनाई की पत्ती है, पुनर्नवा है, आपका पुदीना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर से साफ करने का काम करते हैं। लेकिन सबको इकट्ठा करना, सही मात्रा में उसका मिश्रण करना, उसको रोज उसको काढ़ा बनाना, फिर उसको पीना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। हर कोई इसको रोज डेली नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही चीज कंपनी ने क्या किया, वही जड़ी बूटियों को सही तरीके से प्रोसेस करके वो उसका जूस बना दिया डिटॉक्स के नाम से। अब उसका एक ढक्कन पीना है सुबह पानी में डाल के, आपका हो गया साफ। 3 महीने उसको रेगुलर पियो, आपका अंदर से कंप्लीट क्लीनिंग हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं रेगुलर, एक समय के बाद में गाड़ी की सर्विस करवाते हैं सर, सर्विसिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? जो उसका अच्छा ठीक रहना है। भी उसको तेल डाल के चलाते रहेंगे, तेल डाल के चलाते हैं, किसी न किसी समय पे वो या तो धुआं छोड़ना शुरू करेगा, उसका इंजन खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही हम अपने साथ कर रहे हैं, खा रहे हैं चल रहे हैं, खा रहे हैं चल रहे हैं, खा रहे हैं चल रहे हैं, बस बाहर से साबुन शैम्पू लगा के अच्छे से साफ रहते हैं, है ना, ब्रश कर लेते हैं, अच्छा सा पेस्ट लेंगे, लेकिन अंदर से सफाई नहीं करते। तो ये है आयुर्वेद। अब समझ में आया आयुर्वेद से बीमारियां क्यों ठीक होंगी? सर समझ में आया? पीछे समझ में आया? चलो अब शुरू करें आगे। हेड ऑफिस है जयपुर में है, और ये हमारी खुद की फैक्ट्री है कंपनी की, वेदरलेस इंडस्ट्रीज के नाम से, जो कंपनी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे इसमें कुछ मशीनरीज हैं जो मैंने फोटो क्लिक किए थे वहां से, और आप चाहें तो वहां पे जाके सब विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कंपनी का ऑफिस, कंपनी का फैक्ट्री, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो सब आप बनते हुए भी देख सकते हैं। तो कभी अगर समय निकाल के आप जाएंगे तो आपको वहां सब देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग 150 से 60 प्रोडक्ट है कंपनी के पास, जिसमें आपका सबसे पहले हेल्थ केयर है, होम केयर, पर्सनल केयर, वेटरनरी, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, सब प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और एक ऐसी यूनिक चीज कंपनी ने अपने सिस्टम में ऐड की है जो पूरे इंडिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इस सिस्टम को नहीं छेड़ा था। अब ये उसमें लिखा है, आपकी बंगाली में डाइवर्ट करवाया था, कोई पढ़ के सुनाएगा उधर क्या लिखा है? क्या लिखा? महाकश्या। चलो ये क्या है? ये एक काढ़ा है, काढ़ा समझते हैं? काढ़ा समझते हैं सब लोग? कोरोना के टाइम पे सबने काढ़ा बना के पिया था, कोविड में। 5 आइटम मिला के। हाँ, वो कुछ जड़ी बूटियां मिला के उसको उबाल के काढ़ा बनाया जाता है। तो ये जो महाकषाय है ना, ये महाकाढ़ा है, ये काढ़े का भी काढ़ा है। इसको बनाने के लिए 10-15 तरह के काढ़े बनाए जाते हैं, उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसका काढ़ा बनाया जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, ये कंपनी ने खुद सर्च नहीं किया है। हजारों साल पहले ऋषि चरक जो हुए थे, उन्होंने अपने उसमें ग्रंथ में, अपनी किताब में, जो कि कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, कुछ क्लासिकल मेडिसिन है। क्लासिकल मेडिसिन समझते हैं? कुछ आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन हैं जो सरकार से अप्रूव्ड है, जिसका जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और वो फॉर्मूला कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जो आयुर्वेद की कुछ बुक्स उसमें लिखा हुआ है। तो ये भी एक फॉर्मूला है महाकषाय। इसमें 52 तरह के काढ़े हैं, और वो काढ़े हैं जो जिनका बनाने का प्रोसेस काफी लेंथी होता है, काफी खर्चीला होता है, उसमें समय लगता है बनाने में, लेकिन वो बना दिया ना तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो ऋषि चरक ने क्या किया था, उन्होंने 52 तरह के काढ़े बनाए थे। जैसे डायबिटीज के लिए काढ़ा बना दिया, पाइल्स के लिए एक अलग से काढ़ा बना दिया। वे आपको नॉलेज नहीं है कौन सी जड़ी बूटी डालनी है, क्या देना है, वो पूरा उन्होंने एक में ही बना के डाल दिया। महिलाओं की समस्याओं के लिए काढ़ा बना दिया, आपको थायराइड है उसके लिए काढ़ा बना दिया कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो महाकषाय सीरीज है, ये हमारी कंपनी के पास ही है, अभी किसी ने इसको लॉन्च नहीं किया है, डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप अगर इसको यूज करेंगे, यूज करवाएंगे तो अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जिन्होंने इसको यूज किया, यूज करवाया, हाथ खड़ा करेंगे, किसी को कोई रिजल्ट आया हो शानदार? आपने यूज किया सर? और किसी ने? आपने यूज किया? आपको कोई इधर क्या किया था? इधर हृदय महाकषाय। अच्छा, हृदय महाकषाय, कुछ रिलीफ मिला आपको? स्ट्रोक होने के बाद स्ट्रोक हुआ था मेरे को। अच्छा, 3 महीने आज पूरा उसको रेगुलर यूज कर रहे हो? अभी अच्छा लग रहा है? अच्छा है, फिट है। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए तालियां हो जाए।
ये जो महाकसा एक ऐसी चीज है कि अगर इसको आप रेगुलर यूज करते हैं 3 से 6 महीने, तो ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते। एमपी का एक वीडियो आपने देखा होगा, यूट्यूब पे डला हुआ था कि एक कपल है, उनको 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, 10 साल से, और उन्होंने हमारा एक प्रजा स्थापन नाम का मार्क्स है, वो देखो वो पिंक कलर में दिख रहा है, प्रजा स्थापन। ये ऐसा महाकाढ़ा है जो अगर कोई महिला बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले तो देखो टेस्ट करवाना होता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो महिला में है कि पुरुष में है। कई बार होता है क्या कि पुरुष टेस्ट नहीं करवाते, प्रॉब्लम पुरुष में होती है और इलाज महिला का मतलब डॉक्टर शुरू कर देता है, ठीक है। ये महाकाढ़ा उन्होंने 6 महीने यूज किया था, रेगुलर 6 महीने। 6 महीने बाद प्रेगनेंसी हुई और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। वो वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कभी भी उसका एड्रेस, उसका गांव, उसका नाम, उसका घर सब देख सकते हो जाके। जुड़वा बच्चे उसको हुए, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है महाकाढ़ों के। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि मेडिसिन बेचना है। सर जी ये क्या महिला में प्रॉब्लम था? हाँ, महिला। अच्छा, पुरुष में प्रॉब्लम होगा तो? पुरुष के लिए 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो अपना वो किंग केसरी है और एक शिलाजीत है, और एक टैबलेट कपल ग्लास के नाम से टैबलेट और सिरप, कपल ग्लास के नाम से टैबलेट और सिरप। मतलब कहने का मतलब कि हमने आपको एग्जांपल दिया है महाकसाई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कर रहा हूं, तो क्या ऊपर वाला आपको पैसा देगा? ईमानदारी से बताओ, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप कर तो रहे हो खुद के लिए, लेकिन एहसान जता रहे हो सामने वाले को। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी वीकनेस इस इंडस्ट्री की यही है कि अगर मैंने आपको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद सारा का सारा जिम्मेवारी किसका? मेरा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए। 10,000 देने वाली एक जॉब को आप इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना उसको महत्व देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? सुबह नहा धो के तैयार होके रेडी होके जाएंगे, जॉब पे 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, तब जाके सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता? अगर 10 दिन नहीं जाएंगे सैलरी मिलेगा? मिलेगा सर सैलरी? अच्छा, बारिश आई, कुछ भी है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पता नहीं जाएंगे तो सैलरी कटेगा। चाहे पैर ऐसे ऊंचे करके जाएंगे पानी में से, ऐसे जूते के लिए करके भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। नहीं जाएंगे तो घर में 10,000 नहीं आएगा, बच्चों को फीस कहां से भरेंगे, बिजली का बिल कहां से देंगे, है ना? लेकिन हम ये आईडी कोई नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि कोई प्रेशर है ही नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई आपको टारगेट देने वाला बंदा नहीं है, आप खुद ही अपने मालिक हैं। और हम तो हैं ही महान, हम तो महान हैं भैया, कष्ट नहीं ले सकते। आज बारिश नहीं जाएंगे और पैसा अच्छा चाहिए। अब 8 लाख ऐसे आता है। अब एक बार सोच के देखिए, जिसकी सैलरी 10,000 8,000 है, उसको 8 लाख बोल के देखो कितना लगेगा। सुबह 3 बजे से निकला हुआ मैं घर से, ठीक है, मैं 3 बजे जगह, नहा धो के रेडी हुआ, फिर मैं घर से दिल्ली गया 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके, वहां मैं 2 घंटा एयरपोर्ट में बैठा, कितने हो गए 6 घंटे, फिर फ्लाइट में बैठा 2-2.5 घंटा हो लगा, 8 घंटा, फिर वहां से फ्लाइट से यहाँ आया 1 घंटा, 9-10 घंटा ट्रैवलिंग किया, फिर 2 घंटा होटल में बैठा, 12 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ खड़े होने के लिए, ठीक है। नींद भी है, खाना भी सही से नहीं खाया, लेकिन क्या आपको लगता है मेरे चेहरे से कि मैं थका हुआ है, मैं भूख लगी है, या मेरे को नींद आ रही है? लग रहा है? नहीं लग रहा है किसी को? पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैं अभी जो पैसा ले रहा हूँ ना, तो मुझे 5 लाख 4 लाख, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 20-25 लाख चाहिए महीने का। कितना चाहिए? 20-25 लाख। 20-25 लाख महीने का चाहिए, इसलिए इस कंपनी में आया मैं। 5 लाख 6 लाख तो आ रहा था मेरे को, वो जीरो किया मैंने, रिवर्स किया, उसको छोड़ दिया, नहीं लेना 5 लाख, 25 लाख ले लेना। तो कैसे आएगा? मेहनत करनी पड़ेगी, 25 लाख वाले काम करने पड़ेंगे ना। सुबह उठ के देखिए 3 बजे ठंड में, पता चलेगा। यहाँ तो ठंड कुछ भी नहीं है, हमारी साइड चलिए एक बार हरियाणा में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर रहता वहां सुबह सुबह। अब उस समय पे सोना अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या किसी ने किसी को बोला कि तेरे को आज जाना ही पड़ेगा काम पे? सर किसी ने बोला आपको या तो आपको जाना पड़ेगा, सर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? बोला किसी ने?
कभी भी आप बाहर काम करने का शेड्यूल बनाते हैं इस सिस्टम में आगे, तो कौन बोलता है आपको? आपका मन ही बोलता है ना कि मुझे बाहर जाना चाहिए, बोलता है। तो जितना आप ईमानदारी से इस आईडी का वैल्यू समझते हैं, जितनी ईमानदारी से आप इसको वैल्यू, जितना इसको वैल्यू देंगे उतना ही आपको पैसा आएगा। अब आपको जो आ रहा है वो आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका डेडिकेशन है इस सिस्टम के प्रति। बात समझ में आ गई? देखो बिजनेस प्लान समझा दूंगा आपको, लेकिन बिजनेस प्लान समझाने से काम नहीं चलेगा। 3 बार आ चुका मैं यहाँ पे, बिजनेस प्लान क्या सब कुछ समझा दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे लोगों के चेक नहीं बन रहे हैं, लोगों के अचीवमेंट्स नहीं निकल पा रही है, लोग पता नहीं प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या करें मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं आता हूँ सब लोग अच्छी बातें करते हैं, सब लोग समझते हैं, इतना मोटिवेशन रहता है, सवाल जवाब करते हैं, काउंसलिंग होती है, सब होता है, लेकिन ऐसे जाने के बाद सब साफ। पैसा चाहिए सच में? पैसा कमाना चाहते हैं? सच में चाहते हैं? तो काम तो करना पड़ेगा ना, और सिस्टम से करना पड़ेगा। सिस्टम से करना, चाहे 4,000 का ही चेक आए वो भी एक इनकम है। अब मान लीजिए भाई साहब आपकी 15,000 रुपए की सैलरी है, यार आपको साइड से 4-5 हज़ार आए तो कम है क्या? कितना परसेंट हुआ आपकी सैलरी का? 30% हुआ। कितना सपोर्ट मिलता है? लेकिन दिक्कत पता कहां पे है? हम इस सिस्टम को सीरियसली लेते ही नहीं है। जो जिसको जितनी वैल्यू देता है उसको उतना ही रिवर्स मिलता है। आप जिस चीज को जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उतनी वो चीज बड़ी होगी। आप अपनी टेंशन को इंपॉर्टेंस देंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी। घर में आपके कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो और बढ़ जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा है, आप कर्जा 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 बोलते रहो, सोचते रहो तो और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। गुस्सा किस पे उतारते हैं? फिर काम धंधे पे उतारते हैं। आज काम पे नहीं जाऊंगा, दिमाग खराब है, टेंशन है, तो क्या वो सोल्यूशन हो जाता आपकी प्रॉब्लम का? नहीं होता सोल्यूशन, नहीं, और बढ़ जाती। प्रॉब्लम की वजह है कि पैसा कम आ रहा है, कर्जा है, और हम काम क्या करते हैं, उस बिजनेस को ही दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर गुस्सा उतारते हैं, ये आज नहीं जाएगी काम, छोड़ो, आज तो दिमाग खराब है। जबकि पता है कि सोल्यूशन कहां से निकलेगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से निकलेगा? पैसा से निकलेगा। तो बिजनेस को गुस्सा क्यों दे रहे हो भैया? बिजनेस को साइड में रखो, अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रखो। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग जितने भी यहाँ पे आज आए हैं सब रिस्पेक्टेड हैं, सम्माननीय हैं, सब लोगों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन रियल में अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय से पैसा कमाना है तो दोस्तों टाइम पास मत कीजिए। बहुत शानदार माहौल विद्यालय का आपकी कंपनी का बन चुका है पूरे इंडिया लेवल पे। फेसबुक पे आपने कुछ दिनों से कुछ चीज़ें महसूस की होंगे। कौन फॉलो करता है फेसबुक को, सोशल मीडिया को? विद्यालय की पोस्टें देखते हो आप सब लोग? यस सर। देखते हो सर? आप नहीं देखते? आप नहीं देखते सर? फेसबुक देखते हो? थोड़ा थोड़ा। दुनिया चांद पे गई, आ गई, फिर आ गई। फेसबुक में देखते कनेक्ट रहो ना, पता चलेगा ना क्या चल रहा है मार्केट में। प्रोफाइल की बात कर रहे थे सर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, प्रोफाइल की बात कर रहे थे, प्लान की बात कर रहे थे, एक और भी बताया था उन्होंने, कौन सा था? पे आउट। 4 चीजें बताई थी सर आपने। समझ रहा था मैं भी, कुछ महसूस कर रहा था। जब बिजनेस की बात आती है तो लैंग्वेज का दिक्कत नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान और कंपनी का पे आउट, अगर ये 4 चीज स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम प्रोफाइल की बात करें कंपनी की हमारी, तो हमारी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है जयपुर में, खुद की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी की। ठीक है, और कंपनी को 6.5 साल हो चुके हैं, 6.5 साल हो चुके हैं कंपनी को रनिंग में। अब 6.5 साल होने का फायदा हमें क्या मिलेगा? जब कोई कंपनी नहीं आती है और उसने 5 साल मार्केट में निकाल दिया तो उसका बेस मजबूत हो जाता है, कंपनी स्टेबल हो जाती है, कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट आ चुका होता है, लोगों को विश्वास बन गया, कंपनी टाइम से पे आउट दे रही है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। अब वो 5-6 साल के बाद में अगर कंपनी
में लोग टिकते हैं और कंपनी टिकती है, तो फिर 10 साल 12 साल क्या चलता है? फ्लाइट कैसे चलती है? पहले कहाँ चलती है? रनवे पे दौड़ती है और फिर क्या करते हैं? टेक ऑफ करती है। उड़ान मारने का टाइम है। तो गुदगुदी होती है पेट में एक बार, कई बार कान भी बंद होते हैं ना। हमारी वेदरलेक्स रनवे पे दौड़ चुकी है और उसने जो है वो टायर बंद कर दिया वो हवा में उड़ाने के लिए। कैसे? पहले मैं आया था, देखो पिछले 5 साल में बड़ी कंपनी से कोई लीडर ने मूवमेंट नहीं किया था वेदरलेक्स की तरफ। क्यों? सब लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि क्या ये कंपनी खड़ी रह सकती है, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट मजबूत हैं, क्या ये कंपनी लोगों को पैसा दे पाएगी, क्या ये कंपनी सही तरीके से काम कर रही है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। सब लोग देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। जबकि ये कंपनी के जो ओनर हैं मेरे दोस्त हैं, इस कंपनी के जो मालिक हैं मेरे दोस्त हैं, हमारी फैमिली रिलेशन है, फिर भी मैंने 5 साल इस कंपनी की तरफ नहीं मूवमेंट किया। क्यों नहीं किया? मेरा भी फ्यूचर था, मैं भी देख रहा था। अब देखते देखते जैसे मैंने मूवमेंट किया, मेरे साथ 4 5 6 लोग और आए, बड़े लेवल के, बड़ी अचीवमेंट्स के, रोजगार मिले। दिखाने के लिए नहीं कि कुछ लोग कामयाब हो जाए, लॉटरी लग गई, उसका चेक बन गया, 1000 लोग काम करे, 2 लोगों का चेक बन गया, बाकी लोग ऐसे घूम रहे बेचारे बाल बेचते हुए। उनका सोच ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, तो 40 के 40 लोग काम करें और सबको पैसा जाए। 40 के 40 लोग काम करें और सबको पैसा जाए। इसी हिसाब से बिजनेस प्लान को हमने बनाया है। बात समझ में आ रही? यस हाँ सर। कितना अच्छा हो कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। तो बहुत अच्छा। एक एमबीए किया हुआ या ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति जिसको 12,000 15,000 मिल रहा है, और उसको हम यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी करवाएंगे, 8 घंटे को काम करना है बिजनेस वाला, उसको 25,000 या 60,000 चला जाए तो कितनी अच्छी बात है। सोच के बहुत अच्छा। भाई वो 6 महीने मेहनत करे, उसको 25,000 आना शुरू हो जाए, और 6 महीने और मेहनत करे, उसको 60,000 आना शुरू हो जाए। अगर उसको 60,000 भी आता है 1 साल में, जबकि वो 12-15,000 ले रहा है, तो क्या कम है सर? सर सोच के देखिए, आपका अगर आज सैलरी 20,000 है तो 60,000 कितने साल में होगा? उसी काम में हो सकता है कि पहले बात हो गई, आप सेम फील्ड में तो नहीं होगा। उसको करने के लिए आपको या तो आपका प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको डेजिग्नेशन चेंज करना, तब जाके आपका सैलरी 60,000 होगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक नया लड़का जो 20-22 साल का है, 25 साल का है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वो 1 साल मेहनत कर ले तो 60,000 तो आराम से कमा, मरे से मेरा 60,000 तो कमा ही ले। और 60,000 का मतलब है गवर्नमेंट जॉब की सैलरी। यहाँ पे जो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर है उनका पैकेज इतना ही होता होगा मेरे हिसाब से। रेगुलर जो टीचर है टीचिंग करते हैं, यहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब में इतना ही होता है सर, 50-60 के आसपास। सोच के देखिए। और वही लड़का ग्रेजुएट करने के बाद में मार्केट में काम करने के लिए जाएगा, पैसा तो कमाना है, अब कंप्लीट हो गया, उसको 15,000 मिलेगा, वो सालों साल 15,000, 20,000 लगा रहेगा 5 साल 7 साल 10 साल, तब जाकर उसको कुछ। जिसमें सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट है, फिर ये नाम है वेलकम रॉयल्टी स्टार ऋषि बोनस, ये बहुत सारी इनकम है, आपको ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। मतलब 18 तरीके से इनकम कंपनी ने हमें दिया है। सबसे पहला क्या लिखा, पढ़ो इसको, वेलकम रॉयल्टी। और ये लाइट लगा दो, ये इधर वाली, ये और लगा दो, वेलकम रॉयल्टी। वेलकम रॉयल्टी का मतलब है कि हम 1100 बिजनेस वॉल्यूम की बात करते हैं, कि जैसे अभी सभी जी बोल रहे हैं 1100 बिजनेस वॉल्यूम करना है, 1100 बिजनेस वॉल्यूम करना है, करवाना है। एक तो अपना ये मत बोलो कि 1100 बीवी करना है, ये नहीं बोलना है।